So today we are starting the group discussion about the topic Article 370. So it is a general knowledge group discussion for our NDA coaching. Let's start it. What is Article 370? No, because it has taken our special privileges from us. For example, it has taken our citizenship and has made people to buy their lands in Jammu and Kashmir, which has made unemployment in Jammu and Kashmir. यस कंटिन्यू, रुकना नहीं है। जो भी जिसको बोलते चलो। यस एनीबॉडी, सबको बोलना या मैं फिर ऑर्डर वाइज लेके चलूं कैमरा। यस यस, विल यू स्टार्ट? रश्मीत सिंह, कैसी डिस्कशन है? चलो। For people of Jammu, as our economy will increase, because an economy will increase in that way. People are coming from other states and they will invest in our state, investing in such a way like opening of restaurants, hotels, motels, industrial areas will increase. This will increase our employment also. I mentioned that it will increase employment, but how? For people of Jammu, it is increasing the employment. Everyone has a right. So you have to make your potential increase. Having a special status doesn't mean we will be a special person. You can be removed because it provides special provision to people of Jammu and Kashmir and create discrimination with the other population of all over India. It is very wrong that a state having something special like own flags and constitution, which create discrimination in all over the India. पहले जम्मू इंडिया से अलग होता था, मतलब जम्मू का फ्लैग अलग होता था, इंडिया का फ्लैग अलग होता था। जब ये आर्टिकल रिमूव किया गया उसके बाद वह जम्मू और इंडिया एक साथ हो गई। तो ये रिमूव किया जाना चाहिए था, क्यों? सिर्फ फ्लैग की ही वजह से या कोई और भी रीज़न था तो आपको महसूस होता था कि ये रिमूव होना चाहिए आर्टिकल? सर, वो increase of jobs and yes, it's a good point that Article 370 is removed because many people of India or other countries people before Article 370 was removed cannot live in India. They can live in India but they cannot buy land and invest money in Jammu Kashmir because Jammu was not the part of India before. After removing Article 370, people of India and many countries can live in India, live in Jammu and invest their money and buy lands. I think that it is a right to end the Article 370 because it was started in 1957 and it is clearly mentioned in Article 370 that Jammu Kashmir have its own rules. Only central government only includes financial, security and foreign affairs for any discussion until and unless वो कोई भी एक्स्ट्रा डिसीजंस जम्मू कश्मीर के लिए नहीं ले सकते। और इसमें ये भी बोला गया था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही अगर पार्लियामेंट में जाके ये बोले कि हमें वी वांट टू चेंज आवर जम्मू कश्मीर स्टेट इनटू यूटी, तभी जो जम्मू कश्मीर है वो यूटी में चेंज हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। बट ये 1957 में ही बंद हो गई थी, जिसके बाद से यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है उसके बाद से। और जहाँ पे आर्टिकल 370 में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि जहाँ पे विधानसभा लिखा गया था वहाँ पे राज्य विधानसभा लिख दिया गया, और ये एकदम गलत है क्योंकि यहाँ ना ही किसी जम्मू कश्मीर के किसी भी का सजेशन लिया गया वहाँ के लोगों से, ना ही उसके बारे में किसी से पूछा गया जम्मू कश्मीर के लोगों से कि क्या वो यूटी में चेंज करना चाहते हैं। इसे चेंज किया गया था उस टाइम के होम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद के बारे में की ऑर्डर से, उनके परमिशन से चेंज किया गया था। बट हमारे जम्मू कश्मीर में किसी भी इंसान से एक बार भी इसके बारे में पूछा गया कि क्या हम इसे चेंज करना चाहते हैं, क्या हम आर्टिकल 35A को चेंज करना चाहते हैं, पर किसी से पूछा नहीं गया। ये सिर्फ मतलब कि होम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से की ऑर्डर से किया गया, और आई डोंट थिंक इट इज अ गुड थिंग। जो ये आर्टिकल था ये ठीक डिसीजन था, क्योंकि जब कश्मीर में जो टूरिज़्म है उसको बढ़ाना और मार्केटिंग इकनॉमी बढ़ाना, ये जो हमारी कंट्री की इकनॉमी में हेल्प कर रहा है। इसमें बहुत सारे जो हमारे जिनके पास काम नहीं था उन सबको कश्मीर में या काम वगैरह मिल रहा है, जिनसे उनकी जो नीड्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। It is a very beneficial for Jammu and Kashmir that from other states people will come to Jammu Kashmir and expand their businesses in Jammu and Kashmir. It is a very precious and respectful honor for Jammu and Kashmir that from other states and countries peoples will come and invest their business and business to Sir, I want to discuss the point Article 370 should be removed because it will increase the economy of J&K and other tourist increases, and it allows other peoples to invest on J&K states. Constitution Assembly, the Article 370 cannot be removed. So if the Constitution Assembly is demolished in 1957, then how it can be removed without any Constitution Assembly? Yes, anybody else is having any valid point? Yes. सर इंडिया जब जम्मू हमारा था स्पेशल पोजीशन से उसके बाद, तो 2 रूल्स आए थे 370 में कि हमारे पास इंडिया के जो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो इंडिया का, जम्मू का अलग, वो हमें पहले अप्रूवल देगा, फिर 370 हटेगा। पर जम्मू के पास एक और स्टेट लेजिस्लेचर होनी चाहिए उसके लिए। जम्मू के पास स्टेट लेजिस्लेचर थी नहीं उस टाइम। उसने कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू का बना के जो 370 रूल और 335A बना के ख़त्म हो चुकी थी, तो इसमें जम्मू वालों की ही गलती थी जो 370 उतरा है। सर अकॉर्डिंग टू मी आर्टिकल 370 इज़ वेरी बेनिफिशियल सर, बिकॉज कि आपको पता है कि जो टूरिज़्म है वो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, और इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है जम्मू कश्मीर में। खासकर टूरिज़्म डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, और जो बाहर के स्टेट्स के लोग हैं वो काफ़ी जम्मू कश्मीर एक्सप्लोर कर पाए हैं इसके कारण, और तब से जम्मू कश्मीर में जो इकोनॉमिकल बूस्ट वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और इसके जो बाकी के बाहर के स्टेट्स के वो मतलब एक इन्वेस्टर्स हैं वो जम्मू कश्मीर इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पा रहा है। थैंक यू। To the point given by Mr. Sumit Pal that उन्होंने कहा कि इससे हमारा टूरिज़्म बढ़ा है। टूरिज़्म बढ़ा कैसे? क्या इससे पहले हमने कुछ ऐसा मना किया कि टूरिस्ट नहीं आ सकते हैं? हमने ऐसा कभी कहा नहीं। हमने बस ये कहा कि हमें खुद की लैंड, खुद की प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहनी चाहिए। अगर बाहर के लोग आकर हमारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ रहेंगे? उन्हें शेल्टर नहीं मिल रही, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, और बाहर के लोगों जहाँ इतनी सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे उन्हें जॉब मिल रही है, तो उससे टूरिज़्म कैसे बढ़ रहा है, उससे इकोनॉमिक कैसे बढ़ रही है? इसका मतलब हंसुदा आपका पॉइंट ये है कि जो लैंड राइट है वो जम्मू के लोकल लोगों के लिए रिजर्व रहना चाहिए था। सर क्योंकि 370 में क्लियरली मेंशन है कि उन्होंने ये स्टेट जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख है वो इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि सर हमसे हमारे लॉ, हमारी सारी चीज़ें हटा दी गई, हमें जितनी भी प्रिविलेज दी गई थी, जो हमें 370 में दी गई थी, वो सब इलीगली हटाई गई है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि इसमें नहीं हमें वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही उसे हटा सकती है जो 1975 में बंद हो गई थी। तो कैसे वहाँ से हट गई? कैसे लॉ कैसे हट गया सर? और एक और चीज़ सर कि अगर हमारा जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो जब बाहर के इंटरनेशनल जितनी भी हमारी न्यूज़ है, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो वहाँ पे वो इकोनॉमी बूस्ट नहीं हुई है, लैंड को रिजर्व रखना चाहिए। सर अगर हम लैंड को रिजर्व रखेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट ही कैसे होगी? MNCs आ ही नहीं पाएंगी, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज आ ही नहीं पाएंगी, इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगी। सर अगर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट ही कैसे? सर टूरिज़्म बूस्ट नहीं हो पाया। सर टूरिज़्म सर तब आएगा अगर वहाँ पे इनको कोई देखने की जगह, सर अगर टूरिज़्म तब आएगा कोई होटल्स होंगे रहने के लिए, कोई होटल्स ही नहीं होंगे तो कहाँ रहेंगे?
बाहर तो नहीं रह सकेंगे ना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो बाहर से और अगर सर- हम किसी को लैंड परचेज करने का राइट दे रहे हैं सो दैट दे कैन इन्वेस्ट मनी, ठीक है, दे सर, कैन ओपन न्यू इंडस्ट्रीज। लैंड सर वो लोगों की मर्जी है, उन्होंने अपने लिए बेचा है। वो तो सर लैंड सबके पास था, अपने रिजर्व था, लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों ने उसका प्राइस किया। सर एमएनसीज आई, लैंड कश्मीर का रेट इंक्रीज किया, तो सर इकोनॉमी में हमारे लोगों को ही फायदा हुआ। तो सर ये पॉइंट वैलिड नहीं मेरे को लगता उनके अकॉर्डिंग। So I have also have an objection। जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे होटल्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, और जो भी उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ पे इतना लोकल जो पॉपुलेशन है वो इतनी इंक्रीज हुई है क्योंकि बाहर के स्टेट्स के लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो जगह आ कहाँ से रही है कि होटल भी इतनी जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा जगह है कि वहाँ पे आप बाहर के लोगों के स्टेट्स के घर भी बन रहे हैं, होटल्स भी बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी बन रहे हैं। इतनी स्टेट जगह आ कहाँ से रही है जम्मू कश्मीर में? सर अगर किसी और स्टेट के पास ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हम तो जाके कुछ खरीद नहीं सकते या परचेज नहीं कर सकते, होटल नहीं बिल्डअप कर सकते, जैसे कि अभी हम कोई भी अगर चाहे तो दिल्ली में कोई भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो है। देयर इज वन मोर स्टेट इन इंडिया, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर ये स्टेट सब्जेक्ट वाला कंसेप्ट है। सर वहाँ पर है, मगर ऐसे मतलब कोई स्पेशल अलाउ नहीं किया ना। 370 के बाद हम आराम से कहीं भी जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर हमें हिमाचल में भी कोई पर्सन अपनी लैंड परचेज नहीं कर सकता एक्सेप्ट कुछ पैरामीटर हैं उनके जो फॉलो कर सकते हैं। सर अगर हम लैंड बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो हम रेवेन्यू ले रहे हैं, उसके लिए हम कोई ऐसे थ्रो आउट थोड़ी कर रहे सर हैं। इस पॉइंट में से मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। सर जो हिमाचल का केस बता रहे हो आप, सर वो फॉरेस्ट और इसके लिए इन्वायरमेंटल रीजंस के लिए हम वो परचेज लैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि Exactly, agreed. सर जो फॉरेस्ट रीजन है सर, उनके घर पास में अगर घर बनेंगे तो फायर का बहुत ज़्यादा केस होता है, जिससे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो सर ये पॉइंट आप वैलिड में मानता हूँ। ओके हाँ सर? और एनीबॉडी एल्स? सर जम्मू कश्मीर पार्ट बना था, तो सर इसीलिए हमें हमारे इंडिया के उस टाइम के जितने लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स थे और हमारे जो जम्मू कश्मीर के जितने भी किंग और हमारे जो थे उनके बीच में ये डील हुई थी, जिसकी वजह से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A बना था। तो इसका मतलब कि इसमें कुछ गलत तो था नहीं सर, क्योंकि दोनों के बीच में ये चीज़ डील हुई थी। ओके सर मैं पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट वापस करना चाहता हूँ। सर इन्होंने बोला कि वो जो था स्पेशल ठीक था, पर सर जो इनके बीच में सर हुआ था उसका सर ये रीज़न था कि जो इंडिया जो हमारा जम्मू कश्मीर था ना सर, मुस्लिम्स उसमें बहुत ज़्यादा थे, तो सर वो पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकता था। नहीं सर ये पॉइंट है सर, ये मुस्लिम से बहुत ज़्यादा थे इसमें। तो और जो हमारा किंग था वो हिंदू था, और सर महाराजा हरि सिंह पे बहुत ज़्यादा वो थे केसेस थे कि वो हिंदूज को ज़्यादा प्रिविलेजेस देते थे, तो इसलिए उनके बीच में ये बना कि फिर 370 का वो लिया इन्होंने प्रोविजन। इसमें वो नेहरू जी का भी वो था, नेहरू जी ने भी दिया था प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने। ओके इनका की मर्जी है, वो चाहे पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनाए या इंडिपेंडेंट बनाए या इंडिया का पार्ट बनाए। जैसे हम जानते हैं कश्मीर नहीं चाहता था कि वो इंडिया का पार्ट बनाए पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया, वो मजबूरी थी कि इंडिया कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बने। वो भी उन्होंने राजा हरि सिंह को मजबूर था कि उनके पास कोई आर्मी नहीं थी क्योंकि वो अटैक कर चुके थे पाकिस्तान, तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आर्टिकल 370 के अंडर ही हम कर सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते उस पर पाकिस्तान पे अटैक। सो दैट्स व्हाई सर इसमें आर्टिकल 370 का कहीं यूज़ नहीं हुआ। सर जो था महाराजा हरि सिंह थे उनको सर उन पर पाकिस्तान ने अटैक किया था क्योंकि उनको जम्मू एंड JNK पूरा चाहिए था सर, JNK उनको चाहिए था। तो सर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने एग्रीमेंट साइन किया जम्मू के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि अब ये हमारी कंट्री है। तो सर फिर उसके थ्रू हमारी वो सिख रेजिमेंट्स गई थी जिन्होंने पाकिस्तान को बैक पुश किया था वापस, और सर उसके बाद यूएन ने एंटर किया था, तो यूएन ने उसको बोला कि जो अब है वहीं रहेगा, और वो लाइन ऑफ LOC बन गई थी। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर था वो कश्मीर हो गया, उनका कश्मीर हो गया, जो हमारे पास रह गया वो आ गया, और जो उनके बीच में हो गया वो लाइन ऑफ LOC आ गई। We discussed about the article 370 now. We are the student of SR classes and now we discuss about the article 370, and this is a very excited and also very learningful thing for us because इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, हमें कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन समझ आई है कि हमें पता चला कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ये भी चीज़ थी और हम आगे भी चल के अगले हफ्ते भी ऐसी चीज़ें परफॉर्म कराते हैं।
मतलब हमें ऐसी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। Yes. ओके About Article 370, in which many of us have shared our points, valid points towards Article 370, and it has boosted our confidence. So it should be continue in upcoming weeks. And thank you so much. सर टुडे वी हैव सर आज हमने जाना कि आर्टिकल 370 क्या होता है और उसके हमें कुछ वैलिड पॉइंट्स भी मिले। इससे सर हमारा कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ है बहुत। तो हम ऐसे डिस्कशंस ग्रुप डिस्कशंस आगे भी जारी रहेंगे अगले वीक्स में भी। तो आज अब हम इसको एंड करते हैं इसलिए, और मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत इसमें मतलब कि अपना सहयोग दिया है और अब हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। Myself Sumit. So in today's debate competition, we have learned many points to that the merits and the disadvantages of Article 370, and this also helped me in my confidence levels, boosting confidence levels, and we will in future we organize these more types of debates. Thank you. My name is Gurjot. I'm from SR classes. We have discussed about the point 370, Article 370 revoke. Then we have learned a lot of points again. I got बारे में जाना और ये हमारे लिए बहुत अच्छा था, नॉलेजेबल था। तो हम आगे भी ऐसी एक्सरसाइज करते रहेंगे। थैंक यू। आज हमने 370 आर्टिकल पर डिस्कशन की और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। तो ऐसी एक्टिविटी हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 370 के ऊपर डिस्कस किया, काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो हम यही ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन और आर्टिकल 370 एसआर क्लासेस जो था बहुत ज़्यादा हमारे लिए नॉलेजेबल था और हम इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रोन्स एंड कॉन्स। तो हम आगे आने वाले टाइम पे भी चाहेंगे कि हम ऐसी और डिस्कशन करें और एक दूसरे के आइडियाज़ समझें और खुद के आइडियाज़ शेयर करें। So my name is Sudhanshu Sharma. I'm a student of SR classes. It's very we discussed on the topic Article 370. It's very fruitful exercise for our mind and psychological factors. From SR classes, Sasnagar Jammu. Today we discuss about Article 70. It is a very fruitful and educational discussion between among us. My friends and the management also support us. We will try to continue in time weeks. Thank you.